السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی۔ آج مورخہ 13 جنوری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ اردو نیوز بلیٹن دوربین۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اہم اور بڑی خبروں کے ساتھ۔ چیف الیکشن کمشنر کو قانونی استثناء کا سوال عدالت عظمیٰ میں، کیا الیکشن کمیشن آئین سے بالا تر ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے مرکز سے جواب مانگ لیا۔ کیا ہے پورا معاملہ؟ جانیے تفصیلات۔ ووٹروں کی فہرست میں بڑی گڑبڑی، SIR پر ممتا بنرجی کی چیف الیکشن کمشنر کو 5ویں چٹھی، آئینی اصلاحات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ غریب کی روزی پر خطرہ، کانگریس پارٹی کا دو ٹوک اعلان، منریگا کو ختم نہیں ہونے دیں گے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وارانسی میں منریگا بچاؤ مارچ پر لاٹھیاں، گرفتاریوں اور مقدمات، NSUI کا اعلان، نہ جھکیں گے نہ رکیں گے۔ بجٹ خواب دکھا سکتا ہے، حقیقت نہیں بدل سکتا ہے۔ جرائم رمیش کا انتباہ، معاشی سچائیوں کے بغیر روزگار اور ترقی ممکن نہیں۔ ملک میں نفرت کا ماحول، UP میں دلت مظالم عروج پر راجندر گوتم کا الزام، پولیس انصاف کے بجائے اپوزیشن کو روک رہی ہے۔ اندور میں آلودہ پانی نے لی 21 جانیں، کانگریس پارٹی کا جسٹس مارچ 1 کروڑ معاوضے اور قتل کے مقدمے کا مطالبہ۔ NSUI کارکنانوں پر پولیس کارروائی پر سیاست گرم، پرینکا گاندھی کا سخت حملہ، روزگار کے حق کو کچلا جا رہا ہے۔ ایران نے ایک بار پھر بسیج کو میدان میں اتار دیا، 2 کروڑ رضاکاروں کا دعویٰ، امریکہ سے خامنہ ای کی حفاظت کریں گے۔ ٹرمپ کا حیران کن دعویٰ، خود کو وینزویلا کا قائم مقام صدر قرار دیا، عالمی سیاست میں ہلچل۔ غزہ میں سردی بھی قاتل بن گئی، موسم سرما کے آغاز سے 15 سے زائد اموات، خیموں میں مقیم افراد کی مشکلات بڑھ گئی۔ آپ ہمیں YouTube پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ فکر و نظر TV کا اردو پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک انتہائی اہم آئینی معاملے میں پارلیمان کے ذریعے منظور کردہ اس قانون کی آئینی حیثیت کا جائزہ لینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر کو تاحیات قانونی استثناء فراہم کیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اس سوال کا باریک بینی سے جائزہ لے گی کہ کیا وہ رعایت جو صدر جمہوریہ یا گورنر کو بھی حاصل نہیں، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنرز کو دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ معاملہ غیر سرکاری تنظیم ویلک پیپری کی جانب سے دائر کردہ عرضی کے بعد عدالت کے سامنے آیا۔ اس پر سماعت چیف جسٹس سوریہ کانت کی صدارت والی بینچ میں ہوئی، جہاں سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 4 ہفتوں کے اندر جواب طلب کیا ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آئینی عہدیدار اپنے عہدے پر رہتے ہوئے سنگین غلطی یا بدعنوانی کا مرتکب ہو تو اس سے مکمل قانونی تحفظ دینا جمہوری اصولوں کے منافی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مودی حکومت نے سال 2023 میں یہ قانون پارلیمان سے منظور کرایا تھا، جس کے بعد چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنرز کے خلاف سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران کیے گئے فیصلوں پر نہ تو FIR درج ہو سکتی ہے اور نہ ہی مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، اور یہ تحفظ موجودہ و سابق دونوں کمشنرز پر لاگو ہوتا ہے۔ کانگریس پارٹی نے اس قانون کی پارلیمان میں شدید مخالفت کی تھی اور اب وہی معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے زیر سماعت ہے۔ اب سب کی نظریں حکومت اور الیکشن کمشنر کے جواب پر مرکوز ہے۔
मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट की खुसूसी गैर-नज़रसानी यानी SIR के मामले पर एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने 12 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के नाम 5वीं खत में इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन अपने ही 20 साला आईनी इस्लाहात को नज़रअंदाज कर रहा है, जिसके नतीजे में वोटरों को अपनी शनाख्त दोबारा साबित करने पर मजबूर किया जा रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि 2002 की वोटर लिस्ट को डिजिटल बनाने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया गया। AI के 22 बड़ी तादाद में अहल वोटर्स को गलती से खामी वाले जुमरे में डाल दिया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वोटर्स से लिए गए दस्तावेजात की कोई रसीद नहीं दी जा रही। समाज का पूरा अमल गैर इंसानी और मशीनी है। यह तरीक़ाकार आइन की रूह और जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। वज़ीर आला के मुताबिक ये पूरा अमल आम शहरियों को हिरासा कर रहा है और जमहूरियत की बुनियादों को कमज़ोर कर रहा है। मनरेगा के उसूलों में तब्दीली और नए कानून VB जयराम जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर गई है। पार्टी ने आवाम से अपील की है कि वो मनरेगा बचाओ संग्राम मुहिम से जुड़े ताकि देही मजदूरों के रोजगार के हक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियोस में इल्ज़ाम लगाया है कि मनरेगा महज एक स्कीम नहीं बल्कि काम के हक की कानूनी जमानत थी। नए कानून में मजदूर को काम कब मिलेगा यह हुकूमत तय करेगी। लागत का तनासुब तकरीबन 60.40 करके रियासतों पर इजाफी माली बोझ डाल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक इससे मनरेगा अमलन बंद हो जाएगा और करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की तलबा तंजीम नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने वाराणसी में मनरेगा बचाओ मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई की सख्त मजम्मत की है। NSUI के मुताबिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अहाते में निकाला गया ये मार्च मुकम्मल तौर पर पुरअमन था। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस ने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इज्तिमाई गिरफ्तारियां की गई और कई तलबा पर झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। तंजीम का कहना है कि कौमी सदर वरुण चौधरी समेत कम से कम 35 तलबा को हिरासत में ले लिया गया। मुतअद्दिद तलबा रहनुमाओं को घरों में नजरबंद किया गया। NSUI के मुताबिक इस कार्रवाई में तकरीबन 100 तलबा जख्मी हुए। वरुण चौधरी ने कहा है कि मनरेगा करोड़ों गरीबों की जिंदगी का सहारा है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत रोजगार के आईनी हक पर हमला कर रही है। उनका कहना था कि ये लड़ाई खौफ से दबने वाली नहीं है। वरुण चौधरी ने ऐलान किया है कि NSUI न झुकेगी और न रुकेगी। तंजीम ने कहा है कि जिद्दोजहद मुल्क भर में मजीद तेज की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने आने वाले बजट 2026-27 पर हुकूमत को खबरदार किया है कि उन्होंने कहा है कि बजट पेश होने में सिर्फ चंद दिन बाकी है मगर मईशत के असल मसाइल पर खामोशी है। जयराम रमेश के मुताबिक मईशत 3 बड़े बुहरान से गुजर रही है। पहला मसला यह कि कारपोरेट टैक्स में छूट के बावजूद निजी सरमायाकारी सुस्त है। दूसरा मसला घरेलू बजट में मुसलसल कमी है, इससे सरमायाकारी की सलाहियत मुतासिर हो रही है। तीसरा और संगीन मसला दौलत और आमदनी में बढ़ती अदम मसावात है। उन्होंने कहा है कि यह अदम मसावात समाजी तवाज़ुन के लिए खतरनाक है। जयराम रमेश के मुताबिक सिर्फ बड़े दावों से रोजगार पैदा नहीं होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बजट महज आदाद-ओ-शुमार तक महदूद रहेगा या फिर आम लोगों की मुश्किलात को तस्लीम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पायदार तरक्की के लिए फौरी इस्लाहात। कांग्रेस पार्टी के SC डिपार्टमेंट के कौमी सदर जितेंद्र गौतम ने बीजेपी हुकूमतों पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्क में ज़ात और मजहब की बुनियाद पर नफरत फैलाई जा रही है। राजेंद्र गौतम के मुताबिक सब कुछ हुकूमती सरपरस्ती में हो रहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हालात सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। दलितों, आदिवासियों, पसमानदा तबकात पर मजालिम में इजाफा हुआ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस इंसाफ के बजाय अपोजिशन को रोकने में मसरूफ़ है। राजेंद्र गौतम ने मेरठ के एक वाक़ये का हवाला दिया। उन्होंने कहा है कि मुतासिरा खानदान से मिलने से भी कांग्रेस नुमाइंदों को रोका गया। उनके मुताबिक अगर पुलिस मुजरिमों के खिलाफ इतनी ही तेजी दिखाए जितनी अपोजिशन को रोकने में दिखाती है तो जराइम खुद ब खुद कम हो जाएंगे। उन्होंने दलित मजालिम पर फौरी और मुनसिफाना कार्रवाई का मुतालबा किया है।
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आलूदा पानी के पीने से अमवात की तादाद 21 हो गई है। इस वाक़े के बाद रियासत की सियासत में शदीद हलचल मच गई है। कांग्रेस ने शहर में जस्टिस मार्च निकाला। मार्च बड़े निकपति चौक से शुरू होकर राजूरा चौक तक गया। कांग्रेस पार्टी ने रियासती हुकूमत और म्युनिसिपल कारपोरेशन को जिम्मेदार ठहराया। मुतालबा किया गया कि हर मुतासरा खानदान को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। पार्टी ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का भी मुतालबा किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। उमंग सिंघार ने इल्जाम लगाया है कि असल अमवात छुपाई जा रही है। ज्योति पटवारी ने मेयर के इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि साफ पानी शहरियों का बुनियादी हक है। कांग्रेस पार्टी ने वाटर ऑडिट और बेदारी मुहिम का ऐलान भी किया है। कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वाराणसी वाकये पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने NSUI कारकुनानों की गिरफ्तारी को बुज़दिलाना करार दिया। यह एहतजाज मनरेगा खत्म करने के खिलाफ किया जा रहा था। NSUI के कारकुनान पुरअमन मुजाहिरे कर रहे थे। पुलिस ने अचानक कार्रवाई करते हुए तलबा को हिरासत में ले लिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मजदूरों के हुकूक को दबाया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत तशद्दुद के जरिए आवाज खामोश करना चाहती है। उनका कहना था कि मनरेगा ने करोड़ों खानदानों को सहारा दिया है। कांग्रेस पार्टी इस हक की हिफाजत करेगी। उन्होंने मुल्क गिर जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। पार्टी ने मजीद एहतजाजी प्रोग्रामों का इंदिया दिया है। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने बसीज नामी नीम फौजी दस्ता तैनात किया है। हुकूक इंसानी तंजीमों के मुताबिक अब तक सैकड़ों अफराद मारे जा चुके हैं। बसीज को ईरान का सबसे सख्त गिर ग्रुप माना जाता है। यह तंजीम इनकलाब इस्लामी के बाद कायम की गई थी। इसका मकसद दाखिली बगावत को रोकना बताया जाता है। बसीज के अरकान की तादाद तकरीबन 200 बताई जाती है। यह तंजीम ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के तहत कायम करती है। अमेरिका ने बसीज पर पाबंदी आयद कर रखी है। ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरों को अमेरिकी साजिश करार दिया है। सदर पेशकियान ने कहा है कि आवाम के कुछ मुतालबात जायज़ और दुरुस्त हैं, ताहम हुकूमत किसी बगावत को बर्दाश्त नहीं करेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को वेनेजुएला का कायम मकाम सदर कहा है। ट्रंप ने यह पोस्ट तुरंत सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी वेनेजुएला को अबूरी तौर पर चलाया जाएगा। उसके मुताबिक इक़्तिदार की महफूज मुंतकली ज़रूरी है। इससे कबल निकोलो मार्गो को गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल किया गया है। उन पर मंशियात की दहशतगर्दी के इल्ज़ाम हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल पर भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि तेल की आमदनी अमेरिका कंट्रोल करेगा। यह बयान आलमी सियासत में हलचल का बाइस बन गया है। वेनेजुएला ने इस बयान को गैर कानूनी करार दिया है। माहिरीन इसे आलमी कानून की खिलाफ वर्जी बता रहे हैं। गजा पट्टी में मौसम सरमा के शिद्दत ने इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना दिया है। सर्दी, बारिश और तेज़ हवाओं की बाइस हालात बद से बदतर हो गए। तिब्बी ज़राए के मुताबिक सर्दी से बच्चों और बुजुर्गों की अमवात हो रही है। अब तक तकरीबन 15 से ज़ायद अफराद की जानें जा चुकी हैं। हज़ारों ख़ानदान खेमों में रहने पर मजबूर है। उन खेमों में ना राहती सहूलियात और ना मुनासिब तहफ़्फ़ुज़, अद्वियात और खुराक की शदीद क़िल्लत है। आलमी इमदादी इदारों ने तशवीश का इजहार किया है। गजा में बुनियादी ढांचा तकरीबन तबाह बर्बाद हो चुका है। आलमी बिरादरी से फौरी इमदाद की अपील की गई है। सर्दी के साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल फौरी मुदाखलत की मुतकाज़ी है। फ़िक्र नज़र की गुज़िश्ता पेशकश में आलम मोहम्मद अहमदुल्लाह अली अब्दुल मुत्तलिब साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम आप तक पहुँचाते हैं सबसे अहम खबरें, वो भी दूरबीन की गहरी नज़र से। अगले बुलेटिन तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फ़िक्र नज़र TV। शुक्रिया।